Hello everyone and welcome back to Inside the Mind of a Cinephile. Today I'm going to be reviewing Sector 36. So let's just not waste further time and let's review it. Sector 36 is a crime thriller Netflix film directed by Aditya Nimbalkar and produced by Geo Studios and Maddox Films. It stars Vikrant Messi, Deepak Dobriyal and Akash Khurana. It is loosely based on Noida serial murders happened between 2005 till 2006. इस फिल्म का प्रेमाइस बताने से पहले मैं ये बोल दूं कि ये फिक्शनल वर्क ऑफ आर्ट है जो कि इंस्पायर्ड है रियल लाइफ इवेंट से। इसमें नेम से लेके बहुत सी चीज़ों को बदल के दिखाया गया है। सो वो लोग जो ज़्यादा रिसर्च नहीं करते केस पर वो काइंडली इस फिल्म को देख के इसे एग्जैक्ट रियल स्टोरी ना समझे बिकॉज दिस फिल्म नॉट एट ऑल entirely showcases the true events. Sector 36 is a crime thriller set in the underbelly of a bustling Indian city. The film revolves around a dedicated and morally complex cop who gets entangled in a high-stakes investigation centered on Sector 36, a notorious district known for its crime syndicates and illicit activities. When a high-profile disappearance links to the dark world of organized crime, the officer must navigate a dangerous web of corruption, deception, and betrayal to uncover the truth. As he inches closer to cracking the case, the line between right and wrong blurs, forcing him to confront his own ethical dilemmas while facing life-threatening consequences. Both first and second half is really good and interesting to watch. It keeps you excited कि what will happen next and how the servant Prem is going to be arrested. You will definitely not get bored of it. 2 घंटे और 3 मिनट पर मुश्तमिल ये फिल्म जस्टिफाइड है बिकॉज पता भी नहीं चलेगा कि इतनी लेंथ में कैसे कहानी एंड हुई और हर सीन में इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है, स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी जिन्हें मालूम नहीं था और जिन्हें ज़ीरो नॉलेज थी अबाउट दिस केस। मुझे कुछ इश्यूज़ हैं इस फिल्म को लेके और उन पर मैं बात करना चाहूँगी। इस फिल्म में मेन कैरेक्टर के नेम्स से लेके एरिया तक के नेम्स चेंज्ड हैं और स्टोरी बहुत ज़्यादा मेड अप फिक्शनलाइज्ड है। ज़्यादा बेहतरीन के प्रोजेक्ट तब लगता जब ये एक्चुअल इवेंट्स पर 100% या एटलीस्ट 70-80% बेस्ड होता। इन्होंने जिस कहानी की इंस्पिरेशन ले ली और अपनी तरफ से दिखाया सब। अगर ये प्रोजेक्ट बायोपिक बेस्ड होता तो बहुत ज़्यादा तारीफ के काबिल होता, जस्ट लाइक डामर मॉन्स्टर द जेफरी डामर स्टोरी। I don't know why they took this decision to change the whole scenario of this film and to heavily fictionalized it. Maybe producers were confused about its ending कि वो क्या दिखाएं फिल्म के एंड में बिकॉज इन रियलिटी द मेन कल्प्रिट्स ऑफ दिस केस आर नाउ एक्विटेड वेयर एज इन जेफरी डामर केस वहाँ फ़ौरन सज़ा दे दी गई थी, तो वही बायोपिक में भी उन्होंने वैसा ही दिखाया एंडिंग में। यहाँ मुझे लगता है बिगेस्ट फ्लॉ ही यही है कि बस सिर्फ किलिंग्स और मेन मर्डर्स इंस्पायर्ड हैं फ्रॉम निठारी केस, बाकी का वर्क ऑफ फिक्शन है। इफ़ आई टॉक अबाउट द परफॉर्मेंसेज ऑफ दिस फिल्म, प्रेम सिंह प्लेड बाय विक्रांत मैसी ज़्यादा दिखा ही नहीं एज़ कम्पेयर टू इंस्पेक्टर रामचरण पांडे प्लेड बाय दीपक दोबरियाल। विक्रांत के कैरेक्टर में ज़्यादा कोई डेप्थ ही नहीं थी और बहुत ज़्यादा लैकिंग थी कैरेक्टर डेवलपमेंट में। Whereas Deepak's character had a complete 360-degree shift from being ignorant to being a responsible policeman. He showed range of emotions in his performance. He literally nailed in every aspect and situation of this film. The scene where he saw the pornographic video on his laptop, his face showed discomfort. Also, the scene where he confronted Chumki's father कि बसी साहब क्या बोल रहे हैं, क्या ये सच है? His face showed that he was in a state of shock and disbelief कि कैसे किसी बाप ने अपनी ही बेटी को सेल किया। उस मोमेंट में उसके फेस पर जितना शॉक विजिबल था उतना ही एंगर निकल के सामने आया। ही एक्टेड ब्रिलियंटली ऑन दैट सीन। आई रियली enjoyed watching his whole journey and overall he nailed his character in Sector 36. I really don't know why people are so much in love with the performance of Vikrant. For me he was adequate in this performance. प्रेम सिंह वाला ये स्पेसिफिक फिक्शनलाइज रोल पर लिटरली कोई भी एक्टर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है बिकॉज दिस स्पेसिफिक फिक्शनल वर्जन हैड नथिंग मोर टू ऑफर। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग ही वॉज मीडियोकर इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग एंड हिज कैरेक्टर हैड नथिंग मच टू ऑफर इन अ 2 hour लेंथ फिल्म। मैं समझती हूँ इससे भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस विक्रांत की हो सकती थी इफ़ project was written and executed in a right way and not entirely fictionalized, such as characters' names, places, police angle, and not to mention the courage and bravery of the residents जिन्होंने पुलिस की लापरवाही की वजह से कंप्लेन की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को। ये सब चेंज कर दिया गया स्क्रिप्ट में बिकॉज ये बायोपिक नहीं थी। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू एड हेयर इज दैट मैनी पीपल आर सेइंग दैट विक्रांत वॉज लुकिंग ईवल एंड मेनेसिंग ऑन स्क्रीन, बट मुझे वो बहुत ज़्यादा नीट एंड टाइडी एजुकेटेड और टिपिकल नॉर्मल बॉय जैसे ही लग रहे थे जैसे दूसरी फिल्म्स में लगते हैं। उनको देख के बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वो ऐसा ऑरा क्रिएट भी नहीं कर पा रहे थे जैसा डर और अंजाम फिल्म में शाहरुख ने किया था बाय प्लेइंग अ साइकोपैथ। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि एक्टर्स को बायोपिक्स में एटलीस्ट रिजेंबल होना चाहिए उस शख्स से जिसे वो प्ले कर रहे हैं।
और अगर बायोपिक नहीं है, ओनली इंस्पिरेशन या लूजली बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो एटलीस्ट क्लोजेस्ट रिजेम्बलेंस तो होनी ही चाहिए ताकि एक ईवल लुक और मेनिसिंग ऑरा क्रिएट हो। ये रोल कोई भी एक्टर इजीली प्ले कर सकता था। मैंने ये बात इसलिए पहले बोली बिकॉज इस केस में इतना ज़्यादा कोई डेटा मौजूद नहीं है इन मीडिया, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यूज़, फुटेजेस, कोर्ट हियरिंग्स ऑफ बोथ द कल्प्रिट्स। वेयर एज डामर के केस में बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल था, कोर्ट हियरिंग्स और इंटरव्यूज़, जहाँ उसके बात करने का अंदाज़, उसके चलने का अंदाज़, डिमीनर एटसेट्रा, जिसे एवन पीटर्स ने बहुत बेहतरीन कॉपी किया था। और कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ नॉट ईजी टू कॉपी समबडी जिससे आप मिले ना हो बट ओवरऑल फुटेजेस देख के दूर दूर से कॉपी कर रहे हो। Whereas if we talk about both the culprits of this case, हमें उनकी आवाज़, चलने, बात करने का अंदाज, डिमीनर एटसेट्रा कुछ नहीं पता बिकॉज देयर इज़ नो सच 14 मिनट और 1 लेंथ फुटेज अवेलेबल। तो ऐसे केस में एक एक्टर को फ्री हैंड मिल जाता है कि वो अपनी तरफ से जैसा मर्जी चाहे नेगेटिव एक्ट कर ले। फॉर दोज हु आर स्टिल वंडरिंग कि ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, उनके लिए मैं कुछ बातें पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। बेसिकली पूरी फिल्म में किलिंग्स बहुत कम दिखाई हैं और वो भी बस दूर के शॉट से। ऐसा नहीं था कि बहुत डीप डिटेल दिखाया हो जिसे देख के ऑडियंस थोड़ा अनईजी, अनकंफर्टेबल हो जाए। आई वुड से कि किलर के सीन्स बहुत कम थे किलिंग्स को लेके, सो एनीबडी हु सेंसिटिव एंड इज़ वरीड एंड नर्वस कि ये देखे कि नहीं, तो लिटरली सब देख सकते हैं बिकॉज गोर वायलेंस ज़्यादा नहीं है, बस थ्रू वर्ड्स एंड एक्शंस उन्होंने थोड़ा बहुत बोला और किया है। मैनी पीपल आर सेइंग दैट दिस फिल्म इज़ नॉट फॉर द फेंट हार्टेड एंड लिटरली बिफोर वॉचिंग दिस फिल्म आई वॉज हैविंग सेकेंड थाट्स टू। बट एक्चुअली ऐसा भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया है इस फिल्म में जिसे देख के आप डर जाएं। एवरीबडी कैन वॉच इट बिकॉज इससे भी बहुत ज़्यादा दूसरी फिल्म्स में दिखाया जा चुका है ऑलरेडी और यहाँ बिल्कुल भी एक्सट्रीम लेवल पर नहीं दिखाया गया। मुझे ओवरऑल ये फिक्शनल फिल्म इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स अच्छी लगी और इट गिव्स यू अ फील ऑफ टिपिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म, बट द एक्चुअल केस हैपेंड बिटवीन 2005 till 2006 हैज़ मोर ग्रूसम एंड वायलेंट हिस्ट्री। ओवरऑल फिक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ सुपर फिल्म टू वॉच, बट इफ़ यू वॉच इट ऑन अ रियल perspective you will definitely get disappointed with it. So that's it for today's video. I need your love and support, so please do like, share and subscribe my YouTube channel now. Also, don't forget to give your feedback on my reviews in the comment section below. Thank you for watching and I will see you in the next one.